پیچھے ہماری سوچ کیا ہے میں عوام کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ اور آج یہ حضرات جو احتجاج کر رہے ہیں، قوم دیکھ رہی ہے کہ کس طرح گرگٹ کی طرح انہوں نے رنگ بدلا ہے، کس طرح ان کے دو چہرے ہیں، اور آج قوم ان کے چہروں کو دیکھ رہی ہے، پہچان رہی ہے۔ یہ کیوں نہیں چاہتے؟ یہ کیوں چاہتے ہیں کہ ترمیم نہ ہو سکے؟ یہ اس لیے چاہتے ہیں، یہ عادی ہیں، یہ خرید و فروخت کے، یہ زمینوں کے سوداگر ہیں، اور یہ خرید و فروخت کے نظام کو جاری رکھنا چاہتے ہیں۔ اور عمران خان صاحب نے وعدہ کیا تھا کہ ہم اصلاحات کریں گے، اور شفاف اصلاحات کے ذریعے ہم شفاف اصلاحات کے ذریعے ہم آگے بڑھنا چاہتے ہیں۔ جناب والا، آپ کے سامنے ہے کہ ماضی میں کیا ہوتا رہا۔ یہ ایک سینٹ کی بات نہیں ہے، مختلف سینٹ کے انتخابات کا آپ مطالعہ کریں۔ ایسے لوگ جن کی نہ کوئی جماعت تھی، نہ ان کے پاس کوئی ووٹ تھے، آزاد حیثیت سے کھڑے ہو جاتے تھے اور خرید و فروخت کے ذریعے وہ سینٹ کے ممبر بن جاتے تھے۔ وہ لوگ جن کا کوئی نظریہ نہ ہو، کوئی جماعت نہ ہو، کسی جماعت کی بیکنگ نہ ہو، وہ سینٹ میں آتے ہیں تو ان کے مقاصد کیا ہیں، ان کا آبجیکٹو کیا ہوتا ہے، اس کو بے نقاب کرنے کے لیے یہ بل لایا گیا ہے۔ شفاف اصلاحات جو آئے دن یہ مطالبہ کرتے تھے کہ ہمیں اصلاحات چاہیے، ہم چاہتے ہیں شفاف انتخابات کے لیے الیکٹورل ریفارمز چاہیے۔ تحریک انصاف الیکٹورل ریفارمز کے لیے آگے بڑھنا چاہتی تھی، آگے بڑھنا چاہتی ہے۔ انہیں بارہا دعوت دی گئی، لیکن یہ کسی بات کو سننے کے لیے تیار نہ تھے نہ ہے۔ آج بات یہ ہے کہ پارلیمنٹ کی اپنی سینکٹی ہوتی ہے۔ یہ جو آج آپ دیکھ رہے ہیں، یہ جو ان کا رویہ ہے، جو ان کے طور طریقے ہیں، یہ پارلیمنٹ کی سینکٹی کو پامال کر رہے ہیں۔ آئے دن ان کی تقاریر آپ سنیں، یہ پارلیمان کی سوورنٹی کی بات کرتے ہیں، پارلیمان کے تقدس کی بات کرتے ہیں، اور جس طرح پارلیمان کے تقدس کو یہ آج پامال کر رہے ہیں، پوری قوم دیکھ رہی ہے اور اپنے آپ کو قوم کے سامنے بے نقاب کر رہے ہیں۔ یہ آج کرپٹ پریکٹسز جن کو ہم ہمیشہ کے لیے ختم کرنا چاہتے ہیں، وہ اس کو دوام دینا چاہتے ہیں۔ وہ کرپٹ پریکٹسز کو مزید برقرار رکھنا چاہتے ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ سینٹ میں ایسے لوگ منتخب ہو کر آئے، کیونکہ سینٹ ایک ایسا ادارہ ہے جو وفاق کی علامت ہے، کہ چاروں دہائیوں کی اور فیڈرلزم کا وہ عملی مظاہرہ وہاں کیا جاتا ہے۔ اور یہ جب خرید و فروخت سے لوگ آئیں گے، وہ کیا وفاق کا دفاع کریں گے، وہ کیا آئین کا دفاع کریں گے، وہ کیا عوام کے حقوق کا دفاع کریں گے، وہ کیا شفاف قیادت لے کر آئیں گے۔ وہ صرف اپنی تجوریاں بھریں گے، ان کا مقصد قومی خزانہ لوٹنا ہے اور اپنی ذاتی تجوریاں بھرنا ہے۔ یہ ان کی عملی سیاست ہے، اور اس سیاست کو یہ دوام دینا چاہتے ہیں، اور اس سیاست کا ہم خاتمہ چاہتے ہیں، اور اس خاتمے کے لیے آج ہم یہ بل لے کر آئے ہیں۔ جناب والا، یہ ہمارا ایک اصولی موقف ہے، اور یہ ہم نے آج نہیں کیا۔ اگر یہ قوم کو تاثر دینا چاہتے ہیں کہ ہم نے ان انتخابات میں اپنے پسند کے نتائج کے لیے یہ بل موو کیا ہے، تو یہ غلط بات ہے۔ آپ کو علم ہے کہ جب پچھلی دفعہ آج سے 3 سال پہلے جب سینٹ کے انتخابات ہوئے تو ہم نے ڈسپلنری ایکشن لیا ان لوگوں نے جنہوں نے اپنے ضمیر بیچے، جنہوں نے اپنی قیمت لگوائی۔ تحریک انصاف کی قیادت نے ان کے خلاف ڈسپلنری ایکشن لیا۔ پاکستان کی تاریخ میں، طالبان کی تاریخ میں یکمشت کبھی 20 MPs کو اٹھا کر علیحدہ نہیں کیا گیا۔ یہ ایک نئی مثال قائم کی۔
शफाफ सियासत की और तब्दीली की सियासत की बुनियाद रखी जो इन्हें मंजूर नहीं है और ये उसको हजम नहीं कर पाएंगे। जनाबे वाला, आज कौम इनसे सवाल कर रही है कि आप चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के अलंबरदार ठहरे। चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की आर्टिकल 23 क्या आपकी नजरों से ओझल हो गया? क्या आपको आज आर्टिकल 23 चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी से आप गाफिल हो गए? क्या आपकी सोच बदल गई? क्या आपकी जरूरियात बदल गई? क्या सियासी मसलहत आप पर हावी हो गई है और आपने फिर एक कलाबाजी खाई है और नहीं चाहते कि हम उस चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पर कायम रहें? जनाबे वाला, ये कौम भी देख रही है। आज सेनेट में हम अकलियत में थे। ये बड़ी जमातें, पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून और इनके हलीफ JUI, ये सेनेट में इन्होंने बहस की और एक लंबी बहस हुई। उस बहस में इन्होंने खुद इस चीज का मुतालबा किया कि ओपन बैलेटिंग होनी चाहिए। हम एक साफ निज़ाम चाहते हैं, हम शफाफ इंतखाबात चाहते हैं। चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में क्या आप पाबंद थे? या आप कह दे कि हमने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी को फाड़कर रद्दी की टोकरी में फेंक दिया है, तो फिर आप अपना रवैया बदल सकते हैं। अगर आज भी चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी को तस्लीम करते हैं, तो फिर आज ये आपका चेहरा बदला हुआ क्यों है? या आज आपका मौक़िफ़ हमें तब्दील दिखाई क्यों दे रहा है? सेनेट की डिबेट उठा के देखें। सेनेट की डिबेट में क्या आपने अपना मौक़िफ़ जो वहाँ पेश किया था, आज उस मौक़िफ़ से आप क्यों हट रहे हैं? जनाबे वाला, आज हमारे पास दो रास्ते हैं और हमारी हुकूमत के पास दो रास्ते थे। हम इस जो कला सड़ा और बोसीदा तर्ज था उसको ख़त्म करना चाहते हैं और एक बेहतर निज़ाम राइज करना चाहते हैं। हमें कहा गया कि आइन का जो इंटरप्रिटेशन है उसका अख्तियार सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पास है। चुनाचे हमने सुप्रीम कोर्ट को एक मुकद्दम इदारा समझते हुए, तस्लीम करते हुए वहाँ एक रेफरेंस दाखिल किया है और मौजूद जज साहबान से उनकी राय तलब की है कि आइन क्या कहता है, सेनेट के इंतखाबात के बारे में आपकी इंटरप्रिटेशन क्या है? क्या वो ओपन बैलेट के जरिए हो सकते हैं या उन पर भी सीक्रेट बैलेट की कदगन लगती है? क्योंकि हमारे कानूनी माहिरीन की नज़र में ऐसी कोई कदगन नहीं है और उसकी इंटरप्रिटेशन हमने आला अदलिया से मांगी है। वहाँ मसला ज़ेर बहस है। मुझे उम्मीद है कि आला अदलिया इस पर गौर करके अपना फैसला सादर करेगी। हमारे पास दूसरा रास्ता ये था कि हम आइन में तरमीम करें और आइन की तरमीम के लिए 2/3 अक्सरियत दरकार होती है। हमारे पास, आप भी जानते हैं और पाकिस्तान की आवाम भी जानती है कि हमारे पास 2/3 अक्सरियत न थी न है। लेकिन फिर हमने ये मूव क्यों किया? हमने ये बिल मूव इसलिए किया कि ये जो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के नंबरदार है, जो शफाफ इंतखाबात के दावेदार हैं, इनको बेनकाब किया जाए और कौम देखे कि इनके असली दांत क्या है। जैसे हाथी के दांत दिखाने की और होते हैं, चबाने की और होते हैं, तो आज कौम देख रही है कि इनका कहना और इनके करने में जो तजाद है वो आज बेनकाब हो गया। ये कहते कुछ है, ये चाहते कुछ है, ये आज कौम ने देख लिया। जनाबे वाला, अब फैसला ये करना था कि क्या किया जाए। हमारी क़यादत ने, इमरान खान साहब ने कहा, सबसे बड़ी कचहरी अल्लाह के बाद आवाम की कचहरी है। तहरीक इंसाफ और उसकी हलीफ जमातें अपना मुकदमा आज पाकिस्तान की आवाम की कचहरी में रख रहे हैं। हम लोगों से पूछना चाहते हैं कि आपको सेनेट में चोर चाहिए
कि आपको सेनेट में ऐसे मेंबरान चाहिए जो पाकिस्तान के वफाक का दिफा करेंगे। कौम में उसका इंतखाब करना है। हमारे पास 2/3 अक्सरियत नहीं है। हमने इनके कॉल को, हमने इनके वादों को, हमने इनके चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी को सामने रखते हुए आजमाइश में डाला। आज पूरी कौम देख रही है कि पूरी ऑपोजिशन आजमाइश की घड़ी में मुब्तला है और देखते हैं, तारीख देखेगी कि ये किस तरफ खड़े होते हैं। तारीख इस बात को नहीं जुटलाएगी जो आज इनका रवैया है। ये आज फिर करप्ट प्रैक्टिसेस का सहारा बन रहे हैं। ये आज फिर करप्ट प्रैक्टिसेस के सामने जो हम दीवार खड़ी है उनको गिराना चाहते हैं और ये इस दीवार को कायम रखना चाहते हैं। पाकिस्तान के लोगों, पाकिस्तान की अवाम जिसने 2018 के इंतखाबात में इमरान खान पर, तहरीक इंसाफ पर, बल्ले के निशान पर मोहर लगाकर हम पर एतमाद किया, हमने आज उस एतमाद को बरकरार रखा है। हमने उस एतमाद का सौदा नहीं किया, जानते हुए कि हमारे पास अक्सरियत नहीं है। हमने फिर भी अवाम के जज्बात का एहतराम किया है। हम हमेशा कहते थे और हमेशा कहते हैं कि बैरून मुल्क रहने वाले पाकिस्तानी पाकिस्तान का सरमाया है। वो आज हमारी मईशत को जितना सहारा उन्होंने दिया है, हमारी एक्सपोर्ट से ज़्यादा आज भी हमें रिमिटेंसेस मिल रही है, वो काबिल कदर पाकिस्तानी है। और उन पाकिस्तानियों को हम चाहते हैं कि पाकिस्तान के अमली सियासी निज़ाम में एक मौका मिलना चाहिए और उनके लिए इंतखाबात में हिस्सा लेने के लिए हम गुंजाइश पैदा करना चाह रहे हैं। इस आईनी तरमीम के ज़रिए हम उनको मौका देना चाहते हैं कि वो मुल्क के बाहर रहते हुए भी पाकिस्तान की खिदमत करें और अगर उनके पास ऐसी एक्सपर्टीज़ मौजूद है तो उन एक्सपर्टीज़ को बरूए कार लाते हुए वो पाकिस्तान की खिदमत भी कर सके। तो हमने ये बिल भी मूव कर दिया। हम चाहते थे कि अब बैरून मुल्क रहने वाले पाकिस्तानियों को वोट का हक मिला जाए। हमारे इलेक्टोरल रिफॉर्म्स का ये हिस्सा था और बैरून मुल्क रहने वाले वो पाकिस्तानियों, वो कौम के मौसमों, आज देख लो कि तहरीक इंसाफ तुम्हारे लिए दरवाजे खोलना चाहती है और ये लुटेरों का टोला तुम्हारे रास्ते बंद करना चाह रहा है। हाँ, हमें बिल्कुल परवाह नहीं कि बिल पास हो, कि बिल पास न हो, हम अपने असूली मौक़िफ़ पर कायम रहेंगे और कौम तराजू में तोलेगी। कौम तोलेगी कौन और फेल वाले कौन है, सादिक अमीन कौन है और करप्ट प्रैक्टिसेस को दिफा देने वाले कौन है। आज पूरी कौम के सामने दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। आज ये चेहरे बेनकाब हो गए और असलियत सामने आ गई। ये वही लोग हैं जो आज सामने पोस्टर उठा के खड़े हैं। ये तो इस्तीफे देने के लिए आए थे और फिर इस्तीफा देते देते रातों रात पता नहीं क्या हुआ, पता नहीं क्या हुआ। वो राज है, वो राज खोलना नहीं चाहता। वो राज में खोलना नहीं चाहता कि वो जाविया तब्दील कैसे हो गया, वो मौक़िफ़ में ये लचक पैदा कैसे हो गई। वो मुंह पे मारने वाले आज मुंह की खा रहे हैं। जनाब स्पीकर, ये आज सुना है कि एक बैठक होगी। एक बैठक में एक नया ऐलान किया जाएगा, एक नए लॉन्ग मार्च का ऐलान किया जाएगा। करो ऐलान। हम किसी लॉन्ग मार्च से खारिज नहीं है। हम आवाम की ताकत से, आवाम के वोटों से मुंतखब होकर आए हैं और इंशाअल्लाह जमहूरी अंदाज में आइन के दायरे के अंदर रहते हुए अपने हकूक का, पाकिस्तान के आइन का, पार्लियामान के वकार का दिफा करना जानते हैं और करेंगे इंशाअल्लाह। आप हमें याद है आए दिन
तकारीर की जाती थी कि ये अपोजिशन कातिल है, और आज कौम देख रही है जमहूरियत को डीरेल करने वाले चेहरे कौन से हैं, इधर है या इधर है। ये कौम देख रही है कि आज इस निजाम को, आइन को बहाल करने वाले कौन हैं, जमहूरी सोच को अपने पांव की एड़ियों के नीचे रौंदने वाले कौन हैं, ये कौम आज देख रही है। और इंशाअल्लाह आप देखेंगे कि कौम इनका साथ नहीं देगी। जैसे इन्होंने मजमे लगाए और इन्होंने ख्वाहिश की थी, इनकी ख्वाहिश थी लोग लाखों की तादाद में उमड़ आएंगे, लोगों ने इन पर तवज्जो नहीं दी और पटाखा मीनारे पाकिस्तान पर बच गया इनका। और आपने देखा कि इनकी सियासत का, इनकी अमली सियासत का मीनारे पाकिस्तान के साए तले जनाजा निकल गया और कौम ने मुंह फेर लिया, ला ताल्लुकी का ऐलान कर दिया। और ये पीपल पार्टी वाले सुना है एक साबिक वजीर आजम को सेनेट में लाना चाहते हैं, और सुना है सौदे कर रहे हैं कि सिंध से ले लो, पंजाब से दे दो, पंजाब से ले लो, सिंध से दे दो। और सुना है फैसला कर चुके हैं कि किसी को सेनेट का चेयरमैन बनाना है। पंजाब में इनके पास अददी अक्सरियत ही नहीं है कि वहाँ से पीपल्स पार्टी अपना सेनेटर मुंतखब करवा सके। अगर इनके पास वो अददी अक्सरियत नहीं है तो फिर वो उस पंजाब में सेनेट की दरख्वास्त सिवाय खरीदो फरोख्त के बलबूते के और किस तरह हासिल कर सकते हैं, जिसके सामने ये बिल बंद बांधने के लिए हम बिल लेकर आए हैं, ताकि आपकी करप्ट प्रैक्टिसेस जो है वो कौम देख सके। आज कौम को फैसला करना है, आज कौम को फैसला करना है। आज मुंतखब नुमाइंदों का इम्तहान है कि आपने शफाफियत को तरजीह देनी है, आपने जमहूरियत का हाथ थामना है, या आपने चोरों की पुष्पनाही करनी है, और आपने आइन को बहाल करना है और जमहूरी कदरों को रौंदना है। इंशाअल्लाह हमारा ज़मीर मुतमईन है। हम आज बिल पास करवाने में, इस आईनी तरमीम को पास करवाने में कामयाब हो या न हो, हमारा असूली मौक़िफ़ कामयाब हो गया, हमारा नजरिया कामयाब हो गया, हमारी सिमत दुरुस्त है, और उस सिमत के लिए हम इंशाअल्लाह हर मैदान पे लड़ेंगे। और ये हमें मालूम है कि ये जनाब वाला, मैं अपनी पार्टी को गवाह बना कर कह रहा हूँ और इमरान खान साहब के सोच की अक्कासी करते हुए कह रहा हूँ, अदब से चलो, अदब से चलेंगे, बात सुनो, बात सुनाएंगे, बात करो, बात करेंगे। लेकिन अगर आपने समझा कि आप बुली करके और इस ऐवान को और इस ऐवान की रिवायात को पामाल करेंगे, तो आज मैं तरीके इंसाफ और उसके हलीफों से पूछता हूँ, क्या इसकी इजाजत आप दोगे? नहीं देंगे इंशाअल्लाह। तो आज इस रवैये के बाद मैं कह रहा हूँ कि हम किसी नून वाले को और पीपी वाले को और जेईओ वाले को इस बिल पर अब बात करने की इजाजत नहीं देंगे। स्पीकर, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने तरीके इंसाफ का मौक़िफ़ पेश करने के लिए और इनका चेहरा बेनकाब करने के लिए मुझे मौका इनायत किया। और मेरी गुजारिश है कि अब फवाद चौधरी साहब को हमारे मौक़िफ़ को आगे ले जाने का मौका दिया जाए, क्योंकि हम इनकी बात नहीं सुनेंगे। शुक्रिया जी जनाब अहमद साहब। बहुत शुक्रिया स्पीकर साहब आपका इस ऐवान में। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि कल जब ये झगड़ा शुरू हुआ तो स्पीकर साहब के चैम्बर में मुज़ाकरात हुए और PMLN की तरफ से राना तनवीर साहब वहाँ पर आए, अयाज सादिक